It is generally fund. It is generally a fund uh, which help the uh, vulnerable sector to grow. Vulnerable sector including agriculture, uh, micro business. Okay. Who maintain this? Is maintained. Sir, I have not gone through that, sir. Sorry. Since paper was not published today, isn't it? The business standard is published today, sir. So what you read in Business Standard? I've read that HDFC Bank have HDFC Bank have sell out his 1028 crore rupees, going to sell its 1028 crore rupees in Swiss auction, sir. And second news is that RBI is going to help coordinate governor to invest more on green energy, sir, green and maintain climate change. Any other news, Mahesh? Yes, sir. Other news apart from this two news, other is GST. In the new series of Index of Industrial Production, GST data will be included from the next cycle. You both are telling right, but see, monetary policy just set the something rate. Yes, that is the reduction of repo rate by 0.25 basis When? in the last month, sir. Based on what they set the rate? What, sir? Based on what they set the rate? Monetary policy committee taken the decision on the depending on the to control the inflation between the 2 to 4% depending on the market condition and to contract or expand the monetary policy. That thing I am asking, Praveen, based on what? That is inflation, but which inflation? CPI, Consumer Price Index But inflation. no one has told me till now that we have read about CPI, that percentage is CPI, previous month was what you are doing. 5 month CPI you have read in the newspaper. Yes, sir. You have not discussed, not even today, not even yesterday. Why? CPI and food inflation also was in the newspaper. Praveen, what is CPI? Sir, I don't know about it, sir. Consumer Price Index, it stands for. Who released this? No ideas. You have not read about this CPI word, Consumer Price Index word, in newspaper in earlier 2 days. Sir, I have seen this headline, but I don't know about it. Okay. So which index tell about the inflation in the country of goods and services? Any one of you? Inflation index is the CPI, CPI combined. What is core CPI? Core CPI. Yes. So there is headline inflation and core inflation, but That is core inflation, I am asking. core inflation.
core inflation. And the difference between headline and core inflation is the prices of the volatile, that is the food, energies related things is excluded. So Praveen, just do one thing. Please read about CPI in depth. What is CPI? Who released this? What is Yes, WPI? Who just released this thing? That's all. Nothing more than that. And recently you have mentioned like IIP. yes, sir. So for IIP, please just note this thing and read about it. Yes, sir. What was the topic for the day? AI. Artificial intelligence, sir. Yes, go ahead for this. Praveen. Me, sir. Artificial intelligence refer to the science in which we implement we artificial intelligence refer to the science concerned with the building computer and machine uh, with uh, with the thing which where human intelligence needed. There are various advantage of artificial intelligence which is used in the factor of monitoring climate, uh, increasing the production rate of industry, and in many devices it is installed like in circuit of industry, in cars, and in computer it is used for doing calculations and maintaining worksheet and meeting purposes. Uh, there are various tools in computer like ChatGPT, which help in uh, MS Excel and lots of application. Concluding this, I want to say that there are various industrial uses and company various company uses AI to increase its profit. But on the downside, I want to say that it also uh, uh, have a problem with employment. It uh, it it do job replacement and have various uh, security and privacy purpose. These are the Introduction, 2 lines. Only introduction, Praveen. sir. Introduction, say introduction for 2 lines. Yes, sir. Sir, I will repeat the introduction. Only introduction, repeat. Artificial intelligence refers to the science in which we implement various implement it in various machinery and computer and make these things to work without human intelligence. For example, ChatGPT, DeepSeek. That's all. तो इंट्रो में क्या करना है? डेफिनेशन प्लस एक दो एग्जांपल, ऐसा होना चाहिए इंट्रो. Example, strategy. महेश. Yes, sir. Should I start? Yeah. Yes, sir. So artificial intelligence is a stimulation of human intelligence in machines that is programmed to learn, think, act, reasoning, and to learn the data and information. That is artificial intelligence. And the examples of artificial intelligence, ChatGPT and DeepSeek. The term coined in 1956 by John McCarthy. And the components of artificial intelligence includes machine learning, deep learning, and artificial neural networks are the components of AI, and the applications are in the finance, health, agriculture, and each and every sector the artificial intelligence can be used. And the concerns of AI are deep fakes, misinformation, privacy issues. These are the concerns of the AI. And concluding this, I would like to say that integration of ethics with artificial intelligence is the need of our
because the without ethics, the artificial intelligence can be a nuclear can be disastrous more than the nuclear bomb. So global all countries are working for the regulation of the artificial intelligence. Thank you, sir. Okay. So let us get into the NIBM notes of banking and finance basics, in which we have completed till fiscal policy. Should we Yes, sir. My start? question is, sir. Yes, sir. I have a question. Yes. सर अभी जो ओसीटी है क्या है जिसमें जो जिस फ्लो से हम जा रहे हैं कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन और उसमें 2 मिनट में कंप्लीट करना है, यही पैटर्न में सब कंक्लूड करना है ना सर ओसीटी? हाँ, ओसीटी भी इसी में करना। 2 मिनट एक फ्रेम है जिसमें इंट्रो और कंक्लूजन सेम रहेगा, फिक्स। सर अगर वो बोलते हैं यू गो फॉर 5 मिनट्स तो बॉडी को स्ट्रेच करो आप, लेकिन इंट्रो कंक्लूजन फिक्स। ओके 2 लाइन इंट्रो, 2 लाइन कंक्लूजन, दैट्स ऑल। कंक्लूजन में क्या, ये प्रॉब्लम है, ये रेमेडीज है, ये अभी तक दिक्कत आ रही, पास्ट में फ्यूचर में ये होगा, दैट दैट इज अ कंक्लूजन ना। इन दो में से कोई भी एक तरीका आप चुन सकते हैं कंक्लूजन के लिए। क्या यस सर, तरीका? मतलब अगर उन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का। हाँ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में आपको इंट्रो और कंक्लूजन फिक्स रखना है। यस सर। बॉडी आपको स्ट्रेच करना है या कम करना है, कम तो नहीं होगा 2 मिनट से, लेकिन उससे स्ट्रेच हो सकता है। अगर वो बोलते हैं कि आप फ्री हैं कितने मिनट बोल सकते हैं, तो आप बॉडी को और खींच सकते हैं थोड़ा। ओके कंक्लूजन केवल 2 टाइप का होता है। पहला टाइप का तो ये होता है कि आपको ये बोलना है निगेटिव चीज उस सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसका रेमेडी क्या है। दूसरा कंक्लूजन ये होता है कि पास्ट में क्या हो रहा था, फ्यूचर में क्या होगा। तो इन दो में से कोई भी आप एक तरीका अपनाइए कंक्लूड करने के लिए टॉपिक। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, अभी हमें लगता है कि अभी नेक्स्ट वीक में जब अभी सर आप हमें टॉपिक्स देंगे ना तो वो ऑन स्पॉट दीजिए, क्योंकि अभी हम ये टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करके आ रहे हैं ना, तो हम उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे ऑन स्पॉट टॉपिक पे बोलने के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ओके उसके बाद केवल एक टॉपिक बचता है। ओके ओके यस सर। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। कल का होगा यस क्लाइमेट सर। चेंज, उसके बाद होगा राइट टू फ्रीडम। यस सर। दैट्स ऑल। इतने ही टॉपिक है जीडी में। यस सर। हम ये नहीं चाहते कि हम 100 टॉपिक कराएं, है ना। तो ये मोस्ट हाँ प्रोबेबल हाँ। टॉपिक्स हैं। मोस्टली क्वेश्चंस या तो इससे होंगे या तो इसके रिवॉल्विंग होंगे। ओके तो आगे आके हम बात करेंगे फिर आपके जो सडन टॉपिक्स का इशू है। इसमें 17th मार्च को एक कंबाइंड ग्रुप का जीडी होगा। इसमें एनआईबीएम वाले जैसे आप दोनों हैं और एनआईए वाले अलग बैच के 2 लोग आएंगे। ओके तो उसमें कंबाइंड जीडी होगा। उसमें हम पूरा इन्वायरमेंट बनाएंगे ऐसा कि बता सकें कि कंबाइंड जीडी में कैसे आपको बिहेव करना है। ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट तो सिंगल सिंगल होता है ऑनलाइन में, तो उसमें यस सर। कोई इशू नहीं होता है। बट मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा कि ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट जब ऑनलाइन होता है तो क्या आपको तरीका अपनाना है अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा है। यस सर। सो जस्ट गेट इनटू द टॉपिक दैट इज अ क्लाइमेट चेंज और राइट टू फ्रीडम, जो आगे 2 दिन के हैं, कल और परसों। उसके बाद जीडी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स एंडेड। पीआई हमने इन कर चुके हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पीआई एंडेड है, बट एक कंबाइंड ऑर्डर में बचा हुआ है। यस सर। फिर बचेगा हमारा एनआईबीएम के बैंक बेसिक्स। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, जब हमारा पीडीएफ क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम आएंगे कंसोलिडेटेड पीआई क्वेश्चंस में। उसके लिए 3 मॉक कंडक्ट किए जाएंगे। यस सर। 3 मॉक नॉर्मली कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन अगर हमको लगता है कि आप नहीं कर पाए, 3 मॉक में भी आप नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, तो और मॉक भी कंडक्ट किए जाएंगे उसके लिए। यस सर। इसमें से जो तीसरा मॉक होगा वो एनआईबीएम के एक्चुअल पीआई डेट के जस्ट एक दिन पहले लिया जाएगा।
जिससे गैप जो हो वो ज्यादा ना स्ट्रेच हो। Yes, sir. लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir, please. तो क्योंकि आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है, मनी सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, तो आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें केवल दो कंसर्न्स रहते हैं, एक लिक्विडिटी, एक मनी, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी। लेकिन अदर देन आरबीआई जो हमारे पास दूसरी है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी एक अच्छी हो, इसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, बजट अलोकेशन बहुत अच्छा है, अर्निंग मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, टैक्सेशन रेट ऑप्टिमल है। हमारी कंट्री में जो भी आप इनकम टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, ये सब क्या है, किसका कलेक्शन रेवेन्यू है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट होता है कि मेरा रेवेन्यू कितना है, इनकम कितनी है मेरी। तो वहाँ गवर्नमेंट बोलती है मेरी इनकम कैसे कैसे आएगी, या तो टैक्सेस से आएगी जो कि इनकम टैक्स होते हैं, या तो जीएसटी टैक्स होता है उससे आएगी, या तो व्हीकल में आप चालान फाइन फिल करते हैं, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है। कुछ इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, उसका भी कुछ रेवेन्यू मिलता है। और एक्सपेंडिचर दूसरी ओर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है सड़क बनाना, सड़क बनाने में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वो एक एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, वो भी एक इसका एक्सपेंडिचर है। तो मेजर एक्सपेंडिचर इसका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एंड जो लोअर लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट्स रहती हैं वो कैसे पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन को आगे बढ़ाती हैं, कैंपेन लॉन्च करती हैं, हर जिले में अपना अपना एक प्राइमरी का वो शिक्षा केंद्र जो कि फ्री में स्कूलिंग खोलते हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। फ्री में हॉस्पिटल खोलते हैं, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। आरोग्य केंद्र जो फ्री फ्री में खोला हुआ है। तो ये टाइप के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आप फिजिकल डेफिसिट में यही देखेंगे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है और आया कितना इनकम मेरा, उसका डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट। अब आया कितना मतलब क्या? गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ तो लोन लेती है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा है रखा है वो कैसे आएगा? या तो उसने कहीं से लोन लिया होगा, या तो उसकी अर्निंग होगी, मतलब हमारे से ही टैक्स कलेक्ट किया होगा उसने। तो हम लोग लोन वाला नहीं गिनते हैं उसको, लोन वाला तो इनकम होता ही नहीं है ना। अदर देन लोन वाला पार्ट हम लेते हैं और उसका डिफरेंस देखते हैं कि जितना खर्चा कर रही है और जितना इसके हाथ में आया है अदर देन लोन, उसका डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट। और ये फिलहाल फिजिकल डेफिसिट की लिमिट भी सेट कर दी गई है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा। एफआरबीएम एक्ट के द्वारा इसकी लिमिट भी सेट कर दी गई है। रिकमेंडेशन, कई बार रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। 5 साल का जो फाइनेंस कमीशन बनता है वो भी इस पे रिकमेंडेशन देता है कि भाई ऑप्टिमल परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट शुड बी दिस। एट प्रेजेंट एक लिमिट है 60% डेट टू जीडीपी रेशियो की हमारी कंट्री में। मतलब 100 रुपए Yes, sir. अगर है तो उसका 60 रुपए आपका डेट से होना चाहिए। आप ये नहीं कि 90 रुपए ले रहे हो, जीडीपी का 90 रुपए आप डेट से ले रहे हो। 100 रुपए के जीडीपी में 60 रुपए मैक्स टू मैक्स जा सकता है डेट में। 60 के अंदर बाइफर्केशन है कि 40% तो सेंटर कर सकता है, मतलब 40% सेंटर डेट ले सकता है जीडीपी का, और जो स्टेट है वो भारत की टोटल जीडीपी का 20% ले सकता है। ये सीलिंग डिसाइड की गई। अभी फिलहाल फिजिकल डेफिसिट की ऐसी बातें चल रही थी कि 4.5 के आसपास हम लोग रखेंगे फिजिकल डेफिसिट। प्रीवियस टाइम 4.9% का था, फिर टारगेट रिड्यूस हुआ कि हम इतना 2025-26 तक अचीव कर लेंगे। और इसका रेफरेंस लेने के लिए आप जा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ दिस ईयर।
getting this thing. So I suggest please go through economic and budget of this year, और उसमें आप ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रीवियस एंड बजट ऑफ दिस ईयर। उसमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना परसेंट था, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना रखा गया, और थोड़ा टारगेट्स क्या है, अचीव हुए कि नहीं हुए। थोड़ा सा मोटी मोटे चीज की बैंकिंग फाइनेंस में क्या क्या किया गया, कुछ प्रोविजन किए गए, कुछ नए रूल्स लाए गए, वो क्या थे, क्या है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके नॉलेज के लिए, स्पेसिफिकली बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए। दो टाइप की चीजें होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको इसके डेप्थ में नहीं जाना है कि फैक्ट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो सब जानते हैं, घर में भी बजट डेफिसिट हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट भी नहीं पढ़ना है आपको, आपको क्या पढ़ना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी चीज क्रिएट करेगी, एसेट क्रिएट करेगी फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। जैसा कि नाम से क्लियर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि रिकरिंग होता है ये, मतलब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज को, वो रिकरिंग है, हर महीने देना है, हर एवरी मंथ वी हैव टू पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल एक बार होता है, फिर मेंटेन करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है। जैसे कल को कोई एम्स कॉलेज खोल दिया गवर्नमेंट ने, तो एक बार तो खर्चा हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा बस मेंटेनेंस के लिए, बट दैट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। यही हम बात आते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए ये जो चीजें है ना, पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ जिससे थोड़ा नॉलेज हो और समझ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े। तो नेशनल इनकम क्या होती है एक्चुअली, जो भी हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, एक तो उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या आपको बात समझ में आई? Yes, sir. सीधा सीधा एक नेशन है, उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, वट एवर द प्रोडक्शन इज, अगर वो नेशनल और मतलब कोई फॉरेनर भी आता है यही प्रोड्यूस करता है, तो वो भी काउंट किया जाएगा जीडीपी में। बात ध्यान रखिए, जीडीपी में काउंट किया जाएगा उसको। मतलब विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया व्हाट एवर प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजन, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अब बात आती है कि नेशनल इनकम क्या होती है, यानी जीडीपी के बाद जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि नेशनल इनकम जीएनपी का ही भाई है। एनएनपी इज नेशनल इनकम, एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट, जिसमें क्या होता है एक्चुअली जीएनपी में, जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशन का प्रोडक्ट। मतलब उसको कोई भी पर्सन हो, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, हमारी कंट्री के जैसे 100 इंडियन यूएस में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, और बाकी के लोग यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तो हमारा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस वो 100 लोगों का मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो यूएस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब किसको बोलेंगे नेशनल, जिसकी नेशनैलिटी इंडियन होगी। तो इंडियन सिटीजन कहीं भी रहे, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको समेशन करके बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन हटा दीजिए जीएनपी से, एनएनपी होगा, और एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट ही होता है नेशनल इनकम। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है,
डिप्रिसिएशन होता है आप जैसे बाइक खरीदते हैं, तो बाइक की वैल्यू शोरूम से निकलने के 1 साल बाद कम हो जाएगी। कितनी कम होती है? 20% कम होती है, 30% कम होती है, डिपेंड ऑन दैट वैल्यू। उसमें क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि भाई ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर बाइक की वैल्यू कम हो गई, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की, कार की वैल्यू कम हो गई। ये होता है डेप्रिसिएशन। साधारण भाषा में आपने कभी इंश्योरेंस लिया होगा अपनी बाइक का, तो आपने अमूमन नाम सुना होगा जीरो डेट। तो उसको होते हैं जीरो डिप्रिसिएशन पे वो इंश्योरेंस देते हैं, मतलब कल को आपकी बाइक नष्ट हो गई तो डिप्रिसिएशन काटेंगे नहीं उससे, कि मैं जितना बाइक की टोटल वैल्यू एट परचेस टाइम माइनस डिप्रिसिएशन टिल नाउ, अब हम इतना देंगे आपको अमाउंट, वो पूरा अमाउंट देंगे। तो दिस इज डिप्रिसिएशन। Now we are coming to inflation. Inflation is an increase in the price of bunch of goods and services that projects the Indian economy. इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। महंगाई कब होगी? दो तरीके से महंगाई होती है। पहला तरीका, दोनों तरीके में एक चीज कॉमन होती है कि जो मनी है, मनी का सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं महंगाई। एक तो डिमांड बेस्ड महंगाई होती है, एक सप्लाई बेस्ड महंगाई होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। गेटिंग दिस थिंग? इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Yes, सप्लाई के केस में क्या होता है? अगर सप्लाई कम कर दिया है तो प्राइस बढ़ जाएगा। yes, sir. इसको बोलते हैं सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के केवल दो टाइप्स होते हैं, बट दोनों टाइप्स में ये चीज कॉमन है कि जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हायर साइड जाएगी, यानी ज्यादा मनी सर्कुलेट हो रही मार्केट में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज निगेटिव इन्फ्लेशन। निगेटिव इन्फ्लेशन जैसे अभी इन्फ्लेशन 3.81 है, समझिए वो गया -0.01 में, -2%, -3%, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो बस आपको ये याद रखना है कि डिफ्लेशन decrease in the price of goods and services, and deflation occurs when inflation rate becomes negative and stays there for longer side. Getting this thing? अगर आज 10 रुपए है, 10 रुपए किलो टोमेटो है, कल को 12 रुपए हो जाता तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, कल को 8 रुपए किलो हो जाता उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, विथ रिस्पेक्ट टू 10 रुपीज। एक नेक्स्ट टर्म होता है डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन में ही आपको ढूंढना है इसका मीनिंग, दैट इज अ डिफरेंस इन इन्फ्लेशन प्रोवाइडेड बोथ आर इन पॉजिटिव रीजन। कल को इन्फ्लेशन 2% था, आज को 4% है, दोनों पॉजिटिव रीजन में है, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया डिसइन्फ्लेशन का। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो 2% हो गया डिफरेंस, वो होता है डिसइन्फ्लेशन। गेटिंग दिस थिंग? स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टैगफ्लेशन में हम बोलते हैं कि भाई महंगाई भी ज्यादा है कंट्री में और बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड इवन इन्फ्लेशन इज हाई। क्योंकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन हाइयर है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। हु सेज दिस थ्योरी? महेश? फिलिप्स सर। ओके। लेकिन फिलिप कर्व जी ने ये शॉर्ट टर्म में बोला था, लॉन्ग टर्म में स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट करता है उनके कर्व के अकॉर्डिंग। यस गेटिंग सर। दिस थिंग? लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ये रन में। थ्योरी फेल हो जाती है, लॉन्ग रन में स्टैगफ्लेशन आता है सामने। यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज, क्योंकि वहां ऐसा पूछा जाएगा व्हाट इज स्टैगफ्लेशन एग्जैक्टली दीज वर्ड। तो अभी क्या ये बोलना है, द सिचुएशन वेर इन्फ्लेशन इज हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई। तो मतलब अपनी कंट्री दो तरीकों से गुजर रही है, एक तो महंगाई से भी गुजर रही है और बेरोजगारी से भी गुजर रही है। दोनों चीजें सिटीजन के लिए
डेंजर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नाउ बीओपी दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो कुछ ट्रेड करती है इंटरनेशनल कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। हमारी कंट्री और जितनी भी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में अदर देन इंडिया, उनके साथ जो भी ट्रेड होता है तो उसका एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड इंडिविजुअल्स होता है। ट्रेड इंडिविजुअल्स मतलब जैसे कोई आपका रिलेटिव बाहर काम कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड इंडिविजुअल्स। गेटिंग दिस थिंग। आपने एलआरएस के Yes. बारे में भी सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आता है, ट्रेड इंडिविजुअल्स के अंदर, कि यहाँ के जो जनता है वो कैसे खर्च कर रही है। उसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में एफडीआई एफपीआई आ रही है कि जा रही है, अगर आ रही तो कितनी, जा रही तो कितनी, उनका जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। कैपिटल अकाउंट नाम से क्लियर है कि ये कैपिटल से डील करता है, नॉट ट्रेड से। ट्रेड केवल करेंट अकाउंट में जुड़ा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इरर्स एंड ओमिशंस। अगर आपने कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट देखा होगा तो तीसरा होता है इरर्स ओमिशन, जो कि उन दोनों को बैलेंस यानी दोनों में जितना डिफरेंस आएगा, करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है, उसको हम सम करेंगे तो जितना भी आता है उसको भी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है ऑलवेज बैलेंस जीरो। समझिए करेंट अकाउंट में हमारा है 2 रुपए, कैपिटल अकाउंट में -4 रुपीज है, तो -2 डिफरेंस आया तो इरर ओमिशन में हम लिखेंगे +2, जिससे हमारा नेट आ जाएगा 0। इरर ओमिशन को एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व रहता है वो भी बोलते हैं, कि उसी से हम बैकअप करते हैं उसको। गेटिंग दिस थिंग। तो बैलेंस ऑफ Yes, sir. पेमेंट के तीन फॉर्मेट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज इरर्स ओमिशन। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई एफपीआई आते हैं, करेंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इनविजिबल्स चीजें आती हैं। जो अभी फिलहाल लड़ाई हो रही है टैरिफ की, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो बीओपी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। गेटिंग दिस थिंग। हम अभी Yes, इंपोर्ट sir. तो उतना ही करेंगे, जब एक्सपोर्ट करने की बारी आएगी तो टैरिफ के कारण कम हो जाएगा एक्सपोर्ट, तो करेंट अकाउंट हिल जाएगा अपना, अपने फेवर में नहीं आएगा। Deficit हो जाएगा, deficit जाएगा. यस। उस डेफिसिट को कम करने के लिए फिर हमको फॉरेन एक्सचेंज फ्लो करना पड़ेगा, हमारी कंट्री का गोल्ड के अगेंस्ट में फिर फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा, फिर फ्लो करना पड़ेगा, तो आरबीआई का रिजर्व कम होगा। ये दिक्कतें हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि टैरिफ इंक्रीज हो। अब क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये सेम है जो कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को, सरकारी बैंक के स्टेक को बेचती है कुछ परसेंटेज में मार्केट में, उसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी समझिए आज से 1 महीना पहले लगभग गवर्नमेंट ने क्या किया, जीआईसी री जो कि लिस्टेड एंटिटी है गवर्नमेंट की, नेशनल सोल री इंश्योरर है, उसका कुछ स्टेक बेचा। मतलब समझिए आज अगर 100% स्टेक है गवर्नमेंट के पास किसी एंटिटी में, और अप टू 49% तक गवर्नमेंट बेच सकती है। कल को 1% बेचा, परसों 2%, फिर ऐसे ही करके बेचते रहे जब तक 51 तक है उनका, तब तक तो गवर्नमेंट कंपनी है। जहां 51 से नीचे आया तो नहीं रही वो गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड आप लोग जानते ही होंगे, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारी, ये म्यूचुअल फंड एक बकेट होती है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे 100% का बकेट है, उसमें 50% इक्विटी में डाल दिया, 50% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया,
या 50% इक्विटी, 40% डेट इंस्ट्रूमेंट, 10% टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया, तो ऐसे ही कंबाइन करके म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, जिसको ऐसे कंबाइन किया जाता है कि अगर कोई चीज ऊपर जाए और कोई चीज नीचे भी जाए, ऐसे भी स्टॉक रखे जाते हैं उसमें। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। हालांकि कुछ रिस्की पोर्टफोलियो भी होते हैं जो केवल रिस्क ही लेते हैं, यानी केवल इक्विटी कंटेंट किए होंगे। कुछ ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जो लीस्ट ड्यूरेशन के लिए चालू किए जाते हैं, या केवल मनी मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं उसमें। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको सेबी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज एनपीए। तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद इन द सेंस tomorrow we will read about NPA. So Association of Mutual Fund in India is a regulatory, ये गलत लिखा है इसमें, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एक यूनियन है। म्यूचुअल फंड की जो गाइडलाइंस है, जिस पे म्यूचुअल फंड चलता है, वो सेबी देता है। गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? एनपीए हम लोग टुमारो स्टार्ट करेंगे। सर कल से मेरा नाइट शिफ्ट है, तो मेरी ड्यूटी रात को 10 बजे से रहेगी, तो अपने क्लासेस का शेड्यूल कैसे रहेगा? चेंज कर देंगे ना, 8 बजे रख देंगे। ठीक है, चलेगा सर। एनी डाउट यू हैव प्रवीण? No, sir. टेल मी व्हाट इज बीओपी? Balance of payment. It is generally the whole transaction of export and import to our country. ओके, व्हाट इज डिसइंफ्लेशन? The disinflation is generally a term where there is high inflation and in unemployment is also high. व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? Sir, that was stagflation, sir. व्हाट इज डिसइंफ्लेशन? Sir, I forgot it, sir. I have told no disinflation by name, you can see. There is uh, a decrease in price of, लेकिन ये तो ये हो गया ना, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। No. मतलब पहले अगर 4%। डिसइंफ्लेशन की वर्डिंग समझो। डिफरेंस, DI मींस डिफरेंस इन इन्फ्लेशन हैविंग इन पॉजिटिव जोन। पॉजिटिव, ओके सर। प्रीवियस वन 4% था, फिर 2% हुआ। डिफरेंस कितना? दोनों पॉजिटिव जोन में, पहले ये कंफर्म कर लो, एक क्राइटेरिया फुलफिल। सेकेंड इज डिफरेंस, दैट इज 2%, दैट इज डिसइंफ्लेशन। So deflation is negative, that is a decrease in the price of